Good morning, students. Sorry, good afternoon, students. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Beta. So, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस कर रहे थे हम. लगभग हो ही गया था. मेन पार्ट्स नेफ्रॉन. Yes, nephron is the structural and functional unit of kidney. Then, for the convenience purpose, we divide it into yes some subparts. Actually, it is a continuous structure. Glomerulus, bunch of fine blood capillaries. Bowman's capsule, cup-like double-walled structure. Then PCT, proximal convoluted tubule. Then loop of Henle for osmoregulation, means salt and water balance जहां होता है फंक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट. Then DCT, distal convoluted tubule. Then finally collecting tubule, and yes, by the combination of or reunion of many collecting tubule, a collecting duct. यहाँ तक हम आए थे previous period में. Now something more about collecting tubule. This is a short straight part of DCT. DCT का ये short straight part है. Yes, collecting tubule absorbs means reabsorbs water and secretes yes protons. Collecting tubule opens into collecting duct, है ना. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स दे ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट. These are the collecting tubules. Collecting tubules. And all these collecting tubules, they open in collecting duct. Yes, collecting duct. Now, there are two types of nephrons in human kidney. Human kidney में दो प्रकार के nephrons होते हैं, है ना. Nephrons, which are the structural and functional units of kidney. I repeat, they are of two types. Yes, cortical nephrons. They are of two types. Yes, cortical nephrons and yes दूसरे जो है वो है juxtamedullary nephrons. So two types of nephrons are there, cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Firstly about cortical nephrons. Cortical nephrons are with shorter loop of Henle, है ना. कंपैरिजन करेंगे यहाँ. PCT neck, PCT then loop of Henle. Yes, shorter loop of Henle. DCT, then yes collecting duct. Cortical nephron. So cortical nephrons with shorter loop of Henle which extend very little in medulla. This is medulla portion and above line cortex. So cortical nephrons कैसे पहचानने हैं? cortical nephrons है ना, जिनका लूप ऑफ हेनले पोर्शन जो है वो ज्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं होता है. कहाँ? मेडुला में. मेडुला में ऐसे नेफ्रॉन्स को हम नाम देते हैं यस कॉर्टिकल नेफ्रॉन. यानी जिनका ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ रहता है? यस ज्यादा से ज्यादा पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है, हेंस कॉर्टिकल. और भी छोटा कर देती हूं मैं क्योंकि उसके नाम को उसका स्ट्रक्चर जो है उसके नाम के साथ बैलेंस होना चाहिए, है ना.
सो क्या बोला है कि लूप ऑफ हेनले जो पोर्शन है ना, सो तो ये लूप ऑफ हेनले पोर्शन जो है ये यहाँ से शुरू हुआ। तो ये लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा ही पार्ट कहाँ रहना चाहिए, यस मेडुला में, है ना। मेडुला में लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पार्ट रहना चाहिए और इसे हम बोलेंगे फिर कॉर्टिकल। तो मैं जो पार्ट मेडुला का है उसको मैं दूसरे रंग से ड्रॉ करती हूँ। ये लूप ऑफ हेनले के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ मैं लूप ऑफ हेनले को। सो यस, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स विथ शॉर्टर लूप ऑफ हेनले विच एक्सटेंड वेरी लिटिल इन मेडुला, क्योंकि हम जानते हैं कि लूप ऑफ हेनले पार्ट जो है वो मेडुला में लाई करता है और ये इसका जो एक्सटेंशन है वो मेडुला में बहुत कम है, इसका कॉर्टिकल। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट दैट yes lies in cortical area, hence the name cortical nephrons, cortical nephrons. So most of the nephrons are cortical nephron. तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, millions of nephrons are there in kidney और and most of them are cortical nephron, ऐसे ही रहते हैं cortical nephron ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनले पार्ट मेडुला में ज्यादा डीपली एक्सटेंड नहीं होता है। देन few nephrons, है ना, few nephrons, few, most of the nephrons, है ना, most of the nephrons, most of the nephrons are cortical nephrons, few nephrons are juxtamedullary nephrons. So few nephrons have longer loop of Henle, few nephrons have, yes, longer loop of Henle comparatively, yes, longer loop of Henle means maximum part lengthwise it lies in medulla, medulla cortex, है ना, medulla cortex. So तो ये भी है neck portion, PCT, loop of Henle, yes, DCT, then collecting duct. So इस प्रकार से, so yes, in case of juxtamedullary nephrons, yes, they are having longer loop of Henle. So few nephrons in kidney have longer loop of Henle that runs deep into the medulla and these are called as the juxtamedullary nephron. तो जिसके नाम में मेडुला शब्द आ रहा है उसमें लूप ऑफ हेनले मेडुला में ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है और जिसके नाम में कॉर्टिकल शब्द आया हुआ है उसमें नेफ्रॉन्स में सॉरी कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का ज्यादा पार्ट है और जिसके नाम में मेडुला शब्द आया है उसमें कहना कि मेडुला में ज्यादा पार्ट पेनिट्रेट हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है वो हम ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ yes loop of Henle into the medulla region. So two types of nephrons in kidney, cortical nephrons with shorter loop of Henle which extend very little in medulla. Most of the nephrons are cortical nephrons and few nephrons have longer loop of Henle that that runs deep into the medulla and these are called as juxtamedullary nephrons. Now a small branch of efferent arteriole forms a peritubular capillary network around DCT, PCT and Henle's loop of cortical nephrons, also forms loop-shaped vasa recta around the Henle's loop of juxtamedullary nephrons. So nephrons are responsible for elimination of waste materials and osmoregulation. So we can describe it as excretion and osmoregulation and hence are richly supplied with blood. और ये हमने कल ही डिस्क्राइब किया था कि अबाउट 1/4 ऑफ कार्डियक आउटपुट इज सप्लाइड ओनली टू द किडनीज। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स है उनमें से है ना 25% जो पूरा होल ब्लड सप्लाई का होता है हिस्सा वो सिर्फ कौन ले लेते हैं, किडनीज ले लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क वाला जो पॉइंट है वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना रह गया है, उसे मैं एक इंडिविजुअल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले एक लाइन खींच के मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच का डिफरेंशिएशन दिखाना है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब मुझे ड्रॉ करना है एक नेफ्रॉन, पहले एक प्रॉपर नेफ्रॉन ड्रॉ करती हूँ। ये है बोमन्स कप, ये है बोमन्स कप का नेक पार्ट, है ना। नेक पार्ट के बाद है पीसीटी, है ना, पीसीटी।
पीसीटी, पीसीटी के बाद है यस लूप ऑफ हेनले, पीसीटी के बाद है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद है यस डीसीटी, है ना, डीसीटी, और डीसीटी के बाद है यस कलेक्टिंग ट्यूबुल और फिर कलेक्टिंग डक्ट। ये इस प्रकार से। अब है ना, अब कलर चेंज करते हैं पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए। ग्लोमेरुलस ड्रॉ कर रही हूं मैं अब। ये है एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्रांच है रीनल आर्टेरी की, विथ लार्ज डायमीटर एंटर हो रहा है कप के अंदर, कैप्सूल के अंदर कप में। यहाँ फाइन ब्रांचिंग के थ्रू ग्लोमेरुलस नाम का नेटवर्क बनाया है, ग्लोमेरुलस नेटवर्क बनाया है। और फिर बाहर निकलते समय वो निकला है बाहर इफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में, और ये इफरेंट आर्टेरियोल अब आगे जाएगा कंटिन्यू। कल हमने इसको ब्रेक करके दिखाया था। अब ये जो रीनल आर्टेरियोल है ये जा रहा है आगे, ठीक है, ठीक है, ये रीनल आर्टेरियोल। तो इसका क्या होता है, ये जो रीनल आर्टेरियोल है इसका ब्रांचिंग होता है। अब जितना डीप ब्रांचिंग वो डायग्राम में वहां बुक में दिया हुआ है, उतना अगर उतनी डिटेल ब्रांचिंग अगर हम ड्रॉ करते रहेंगे तो आधा टाइम तो हमारा एग्जाम का आधा घंटा तो ये नेफ्रॉन ड्रॉ करने में ही चला जाएगा, है ना। तो इसलिए एक आसान तरीका है इस ये ब्रांचिंग ड्रॉ करने का, है ना। वो ये करते हैं, एक पहले छोटा लूप निकाल लो ऐसा, है ना, एक छोटा लूप बीच में निकाल लो, और फिर यहाँ एक बड़ा लूप यहाँ ये होना चाहिए, है ना। एक बड़ा लूप निकाल लेते हैं पैरेलल लूप ऑफ हेनले को। एक आप हमें रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क जो है वो दिखाना है, आया समझ में, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। और फिर 2-3 जगह पे हमें यहाँ ट्रांसवर्स कनेक्शन दिखाना, एक जगह छोड़ दी 2.3 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो पैरेलल नेटवर्क है ये ड्रॉ करना होता है। यानी कि जो ब्लैक पोर्शन मैंने ब्लैक इंक से मैंने पोर्शन ड्रॉ किया है डायग्राम में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेफ्रॉन, और उसके इर्द गिर्द जो मैंने अभी रेड कलर से पूरा नेटवर्क ड्रॉ किया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, है ना, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है लेकिन इसका मीनिंग समझाती हूँ। पेरी यानी पेरीफेरल एरिया, सराउंडिंग एरिया। किसका सराउंडिंग एरिया, ट्यूब्यूल का सराउंडिंग एरिया। कौन सा ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। कौन सा ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। कहाँ से शुरू होता है रीनल ट्यूब्यूल, ये मैं अभी ब्लू कलर इसमें डाल रही हूँ, ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल है ना। पीसीटी आया, उसमें डीसीटी आया, लूप ऑफ हेनले आया, है ना, लूप ऑफ हेनले आया पूरा, है ना, neck portion PCT, then loop of Henle, then DCT, then yes collecting duct, collecting tubules, है ना, collecting duct finally। तो इस प्रकार से, तो ये जो अभी ब्लू कलर से पूरा पार्ट कलर किया हुआ ये है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के पेरिफेरल एरिया में डाला हुआ नेटवर्क, इसीलिए पेरीट्यूबुलर, इसलिए पेरीट्यूबुलर। कैपिलरी क्यों, क्योंकि आर्टेरी के ब्रांचेस थे आर्टेरियोल, है ना, इफरेंट और एफरेंट। इफरेंट क्या था, आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल का फिर से ब्रांचिंग हुआ है, तो आर्टेरियोल के ब्रांचिंग क्या ब्रांचेस क्या होते हैं बेटा, कैपिलरी होते हैं। आ रही ना बात समझ में। यहाँ रीनल आर्टेरी है ना, यस, रीनल आर्टेरी थी, रीनल आर्टेरी की ब्रांच रीनल आर्टेरियोल, है ना, वो गया ये अंदर रीनल आर्टेरी, ये रीनल आर्टेरी है। रीनल आर्टेरी के ब्रांचेस रीनल आर्टेरियोल, उसकी ब्रांच रीनल आर्टेरियोल, रीनल आर्टेरियोल कफ के अंदर गया जिसको हम एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, फिर रीयूनाइट होके इफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में वो बाहर आया, इफरेंट आर्टेरियोल, और फिर इफरेंट आर्टेरियोल का ये पूरा ब्रांचिंग है, पूरा ब्रांचिंग नेटवर्क है। तो फिर आर्टेरियोल के जो ब्रांचेस होंगे वो क्या होंगे बेटा, कैपिलरी। हमने देखा एवोर्टा, आर्टेरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, है ना, इस प्रकार से। तो
है ना, रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द है इसलिए, सराउंडिंग एरिया में है इसलिए, पेरिफेरल एरिया में है इसलिए पेरीट्यूबुलर, और कैपिलरी यानी कि आर्टेरियोल के ब्रांचेस है इसलिए कैपिलरी, और उसका पूरा जाला बनाया है, मेश बनी है इसलिए नेटवर्क। तो ये रेड कलर से जितना भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, वो पूरा कलेक्टिव क्या है, एक नेटवर्क है जिसको कि हम नाम देते हैं यस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या नाम देते हैं उसको, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये है यस वो जो छोटा प्यारा बीच में हमने समझाना उसका बाकी था, है ना। तो अ स्मॉल ब्रांच ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड डीसीटी, पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, है ना। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड ये होता है उतना अगर हम ड्रॉ करते बैठेंगे तो पहली बात तो हमारे नेफ्रॉन के फिर लेबलिंग्स वगैरह देना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा ये कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ड्रॉ करते करते बहुत सारा समय हमारा एग्जाम में निकल जाएगा। अब बुक का तो काम ही होता है परफेक्ट आइडिया देना, तो बुक में जो डायग्राम है देखो उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है, उतना नहीं दिखाना है आपको। आपको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी आपने ऐसी इतनी सिंपल डायग्राम भी निकाली तो भी इवन देन यू विल गेट फुल मार्क्स। देन तो ये एक पैरा रह गया था, वो भी कवर अप कर लिया है अभी। यस, लूप शेप वासा रेक्टा अराउंड द हेनलेस लूप ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो वासा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के इर्द गिर्द डाला हुआ नेटवर्क है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के इर्द गिर्द डाला हुआ जो नेटवर्क है उसे हम बोल रहे हैं यस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो हमने देखा कि नेफ्रॉन का जो काम होता है वो होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम किडनीज परफॉर्म करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं किडनी, और इस काम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है किडनी को, और इसलिए उस हिसाब से ब्लड सप्लाई भी। तो ओवरऑल जो कार्डियक आउटपुट हमारा होता है, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है उतने ब्लड में से 25% हिस्सा जो है, 25% पार्ट जो है वो सिर्फ किसको दिया जाता है, एक अकेले किडनी ऑर्गन को दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। ये है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क के बारे में आपको बताया अभी, कैपिलरी नेटवर्क, है ना। अब उसके बाद जक्स्टाग्लोमरुलर एपैरेटस यानी क्या, एक नई टर्म है। यस, इसके बारे में पढ़ते हैं आराम से। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, juxtaglomerular apparatus, some smooth muscle cells of the wall of the afferent arteriole, है ना, किसके, afferent arteriole के wall के smooth muscles, some of the smooth muscles are modified in such a way that their sarcoplasm, है ना, their sarcoplasm yes is granular, and these cells are called as juxtaglomerular cells। क्या बोला है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल के जो वॉल्स होते हैं उन वॉल्स के मसल के, अब कोई भी ब्लड वेसल जो है वो मसल की बनी हुई है, सो सम स्मूथ मसल्स ऑफ द muscle cells of the wall of the afferent arteriole are modified in such a way that their sarcoplasm is granular, and such cells are called as JG cells. JG cells means juxtaglomerular cells. In each nephron, beginning part of the DCT makes contact with afferent arteriole of same nephron, है ना, उसी नेफ्रॉन के एफरेंट आर्टेरियोल के संपर्क में रहता है। हर नेफ्रॉन का बिगिनिंग पार्ट जो है डीसीटी का, है ना, डीसीटी का शुरुआती पार्ट, हर नेफ्रॉन के डीसीटी का शुरुआती पार्ट जो है यस वो रहता है संपर्क में किसके, उसी नेफ्रॉन से एसोसिएटेड एफरेंट आर्टेरियोल के साथ। Cells in the wall of the DCT in this region are packed more densely than those in other region of DCT। तो इस एरिया के DCT के जो सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं rather than in other areas of the same part that is DCT, and this is called as macula densa। उसे क्या बोलते हैं, yes macula densa बोलते हैं। Then macula densa and JG cells, macula densa and JG cells together form juxtaglomerular apparatus, JGA।
that plays important role in blood pressure regulation within the kidney। तो जो प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का। तो दो टर्म्स आए यहाँ, दो टर्म कौन कौन से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में दो कौन से टर्म आए, एक जेजी सेल यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, और एक क्या है, यस मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा किसे बोला, डेंसिटी से आया है डेंसा शब्द। सो मैकुला डेंसा रीजन किस रीजन को बोला है कि डीसीटी के शुरुआती पार्ट में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स बाकी के पार्ट के सेल्स के कंपैरिजन में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, और इस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो सेल्स का जो ये रीजन होता है उस रीजन को कहते हैं मैकुला डेंसा। ये रीजन होता है एसोसिएटेड यस जेजी सेल्स के साथ। जेजी सेल्स कौन से हैं, यस एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल के सेल्स, है ना, एफरेंट आर्टेरियोल के वॉल के सेल्स जिनमें थोड़ा सा यस ग्रैनुलर सार्कोप्लाज्म होता है यानी साइटोप्लाज्म, है ना, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, ग्रैनुलर सार्कोप्लाज्म होता है, यस उन सेल्स को जेजी सेल्स बोलते हैं। तो ये जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा एंड जेजी सेल्स टुगेदर फॉर्म juxtaglomerular apparatus JGA that plays an important role in blood pressure regulation। So what you have to remember for this paragraph, yes only that JG cells क्या है, afferent arteriole के वॉल के मसल्स के ज्यादा ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म वाले सेल्स, वो है जेजी सेल्स। उसके बाद मैकुला डेंसा क्या है, डीसीटी की शुरुआत जहां से होती है उस शुरुआती एरिया में, है ना, ज्यादा यस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया को रीजन को डिस्क्राइब करते हैं मैकुला डेंसा। अब ये मैकुला डेंसा और जेजी सेल्स इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, यस जेजीए, क्या बोलते हैं, जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और इसका रोल क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में, रोल क्या होता है इसका, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन विद इन द किडनी, किडनी के अंदर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ये काम होता है जेजीए का। आया समझ में, दिस इज अबाउट द juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus। अब एक बार लिख के समझाते हैं कि कैसे juxtamedular मेडुलरी एपरेटस जो है या juxtaglomerular apparatus जो है वो काम करता है। उसके लिए पहले तो लेना है यस जेजी सेल्स। जेजी सेल्स क्या है, जेजी सेल्स, यस सेल्स ऑफ द, यस मसल सेल्स ऑफ द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, मसल cells of wall of, muscle cells of walls of, yes afferent arteriole, arteriole with, yes with, है ना, muscle cells of wall of afferent arteriole with, yes granular sarcoplasm, with granular sarcoplasm, साइटोप्लाज्म बोलते हो तो भी गलत नहीं होता, है ना, सार्कुलर यस सार्कोप्लाज्म, ग्रैनुलर सार्कोप्लाज्म, इस ऐसे सेल्स को कहते हैं जेजी सेल्स, क्या कहते हैं, जेजी सेल्स। और जेजी सेल्स प्लस मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा इज इक्वल टू यस जेजीए एपरेटस, जेजीए एपरेटस। और मैकुला डेंसा क्या है, मैकुला डेंसा डीसीटी के शुरुआती एरिया में जो कॉम्पैक्ट यस सेल्स का अरेंज किया हुआ एरिया रहता है, कॉम्पैक्ट सेल्स से अरेंज किया हुआ एरिया रहता है, उसे बोलते हैं यस मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा प्लस जेजी सेल्स टुगेदर फॉर्म जेजी एपरेटस, यानी कि juxtaglomerular apparatus, है ना। और इसका काम क्या है, किडनी के अंदर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, किडनी के अंदर के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ हमने नेफ्रॉन के पूरे जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है वो पढ़े हैं इन वेरी मच डिटेल, है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है यस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा, पूरा तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन है इसका। सो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना। तो मैकेनिज्म
ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है ना, नेफ्रॉन में ऑफ कोर्स। तो स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया नेफ्रॉन का कैसा है डिटेल में। अब देखेंगे फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है नेफ्रॉन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है नेफ्रॉन में। सो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 3 सक्सेसिव स्टेप्स। कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है, वो हमने कल ही पढ़े। पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, या फिर उसको दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरी है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है ना, और तीसरी है ट्यूबुलर सिक्रेशन और ऑगमेंटेशन और एक्टिव सिक्रेशन। तो अभी मैं अभी 3 की लिस्ट नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ पहली जो स्टेप है उसी का नाम लिखने जा रही हूं अभी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा नाम होगा इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्टरनेटिव नाम मालूम होना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। यस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो इसमें हमने पहले ही देखा कि डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इफरेंट वन, है ना। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है। देन डायमीटर ऑफ कैपिलरीज इज स्टिल स्मॉलर देन बोथ द आर्टेरियोल। दोनों आर्टेरियोल से कैपिलरी का जो डायमीटर होता है वो कभी भी कैसे रहता है? कम रहता है, सीधी बात है। सबसे ज्यादा डायमीटर वाला एवोर्टा, एवोर्टा से छोटा आर्टेरी, आर्टरी से छोटा डायमीटर होता है आर्टेरियोल का, और सबसे छोटा डायमीटर होता है कैपिलरी का। तो डायमीटर ऑफ कैपिलरीज कभी भी एफरेंट और इफरेंट दोनों के कंपैरिजन में कम रहेगा। ड्यू टू सच डिफरेंस इन डायमीटर ब्लड फ्लोज विथ ग्रेटर प्रेशर थ्रू द ग्लोमेरुलस। तो ये जो डायमीटर में डिफरेंस होता है उसकी वजह से ग्लोमेरुलस में जो ब्लड घूमता है ना, फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है, वो बहुत हाई प्रेशर के साथ सर्कुलेट होता है। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? यस, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि GHP, और उसकी वैल्यू होती है 55 mm ऑफ Hg। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 55 mm ऑफ Hg। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार ये अच्छे से बड़ा सा कप ड्रॉ करती हूँ टू एक्सप्लेन यू अबाउट द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ ये मैं एफरेंट आर्टेरियोल ड्रॉ कर रही हूँ, एफरेंट आर्टेरियोल। ये एंटर हुआ अंदर एफरेंट आर्टेरियोल। अंदर जाने के बाद इसके हुए ब्रांचेस, यानी कि कैपिलरीज, एकदम बारीक बारीक, और उसका बना यहाँ पूरा नेटवर्क बारीक बारीक कैपिलरी का, है ना। उसके बाद इनका फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद ये रहा बाहर निकलने वाला इफरेंट का पाइप। और इफरेंट और एफरेंट दोनों के डायमीटर से कैपिलरी का डायमीटर कम होना जरूरी है, और कम है यहाँ। अब अगर इसको मैं बारीक में निकालना चाहूँ, यानी पूरा नेटवर्क निकालूंगी, तो पूरा गिचड़ मिचड़ हो जाएगा, ऐसे ही है, बराबर है, इस प्रकार से, है ना। पर मैंने आपको डायमीटर पहले समझा दिया, है ना। और ये है ग्लोमेरुलस, सभी को मालूम है। तो क्या होता है कि यहाँ जो ब्लड एंटर होता है एफरेंट में, उसके बाद, है ना, एफरेंट का डायमीटर बहुत ज्यादा है, और कंपेरेटिवली फिर एकदम कैपिलरी का जो है एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में कैपिलरी का जो डायमीटर है वो एकदम कम है। तो उससे क्या होता है कि जब ये ब्लड यहाँ इस ग्लोमेरुलर नेटवर्क में घूमता है, तो उसका प्रेशर जो है वो कम नहीं होता। अदरवाइज क्या होता? प्रेशर कम हो जाता था, लेकिन प्रेशर कम नहीं होने देना है। तो ये डायमीटर जो डिफरेंस, डायमीटर में जो डिफरेंस है एफरेंट के और इफरेंट के डायमीटर में जो डिफरेंस है, एफरेंट है ये, इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट, ये है एफरेंट, है ना। अंदर जाने वाला एफरेंट, बाहर निकलने वाला इफरेंट आर्टेरियोल है। तो इनके बीच के डायमीटर के, इनके डायमीटर के बीच के डिफरेंस की वजह से अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, कहाँ? यहाँ ग्लोमेरुलस में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना, वो किस प्रेशर के साथ सर्कुलेट होता है? वहां 55 mm ऑफ Hg, यानी उतना प्रेशर जितने प्रेशर से मर्क्यूरी मीटर के मर्क्यूरी को 55 मिलीमीटर तक ऊपर उठाया जा सके, उतना प्रेशर, यानी कि 55 mm ऑफ Hg प्रेशर। तो अब क्या है स्टोरी कि भाई, yes, due to such difference in diameter, blood flows with greater pressure through the glomerulus, and this is called as glomerular hydrostatic pressure.
क्या नाम है इस प्रेशर का? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक यस प्रेशर, प्रेशर यानी कि GHP, यानी कि GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद यस लेना है दूसरा पैरा डिस्कशन के लिए। दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय, इस प्रेशर को अपोज करता है, कौन अपोज करता है? अभी फिलहाल ये डायग्राम डिस्कस करते हैं। यस, दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो ये जो ग्लोमेरुलर नेटवर्क की ब्लड कैपिलरी है, इसमें है ना बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस है ब्लड में, है ना, इसमें से ब्लड बह रहा है और उस ब्लड में बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस है। उन डिजोल्व सब्सटेंसेस की वजह से, है ना, जिसको कि हम यस प्लाज्मा ये भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स। सो तो यस घुले हुए उसमें डिजोल्व किए हुए। सो दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किस वजह से क्रिएट होता है? ब्लड में जो बहुत सारे डिजोल्व कंपोनेंट्स है उनकी वजह से। तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, उसे अपोज करता है, किसे? GHP को, GHP को अपोज करता है। तो ये अपोजिंग प्रेशर कितना है? इट इज नॉर्मली 30 mm of Hg, है ना। सो दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 30 mm of Hg एंड कैप्सुलर प्रेशर, है ना, कैप्सुलर प्रेशर नॉर्मली अबाउट 15 mm of Hg, है ना। तो नेट इफेक्टिव अपोजिंग प्रेशर कितना हुआ? यस, वो ड्रॉ निकालने के लिए ध्यान दो। तो ये जो GHP है, GHP कितना बताया? GHP बताया 55 mm of Hg। तो इसको अपोज करने वाले, यहाँ देखो अभी फिर से ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो GHP कितना है? GHP है टोटल 55 mm of Hg, है ना, mmHg है। उसको अपोज करने वाले दो प्रेशर है ना। अपोज करने वाले कौन से दो प्रेशर है? पहला प्रेशर है अपोज करने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, वो कितना है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कितना है? यस, वो है 30 mm of Hg, है ना, वो है 30 mm of Hg। और दूसरा कौन सा प्रेशर है? प्लस, यस प्लस कैप्सुलर प्रेशर। दूसरा कौन सा प्रेशर अपोज करता है उसे? यस, रीनल कैप्सूल के अंदर का जो प्रेशर है वो कैप्सुलर प्रेशर। उसकी वैल्यू कितनी है? 15 mm of Hg, उसकी वैल्यू है यस 15 mm of Hg। इन दोनों की करते हैं टोटल, टोटल कितनी आई? यस 45 mm of Hg, 45 mm of Hg। क्या है ये 45 mm of Hg? ये अपोजिंग प्रेशर है, ये है अपोजिंग प्रेशर। किसको अपोज कर रहा है ये प्रेशर? GHP को अपोज कर रहा है, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अपोज कर रहा है। सो अप्लाइड प्रेशर, टोटल अप्लाइड प्रेशर कितना हुआ? 55 mm of Hg। और टोटल अपोजिंग प्रेशर कितना हुआ? 45 mm of Hg। तो नेट प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, GHP माइनस टोटल अपोजिंग, यानी कि 55 माइनस यस 45 mm of Hg इज इक्वल टू 10 mm, 10 mm of Hg। तो इस प्रकार से यस, दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 30 mm of Hg, कैप्सुलर प्रेशर 15 mm of Hg, इन टोटल 45 mm of Hg। Now yes, applied pressure 55, opposing pressure 45, 55 minus yes 45 applied minus opposing is equal to effective net pressure या फिर effective filtration pressure। तो ये जो 10 mm of Hg वैल्यू मिली है हमें, ये इसको हम दो नाम दे सकते हैं। पहला इसको नेट प्रेशर बोल सकते हैं, नेट प्रेशर फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नेट प्रेशर फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, या फिर बोल सकते हैं यस और इसे बोल सकते हैं यस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर इसे बोल सकते हैं यस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल सकते हैं। देन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन, कैपिलरी के जो वॉल होते हैं वो एकदम थिन होते हैं। Under the effect of high pressure, walls become permeable to major components of the blood, except blood cells and macromolecules like proteins, and thus plasma, except the proteins, oozes out through the wall of the capillaries, and about 600 ml blood passes through each kidney per minute।
तो इस प्रकार से हमारे जो किडनी है वो 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्ट्रेट कर देती है, 600 ml ब्लड फिल्ट्रेट कर देती है ना। 600 ml ब्लड इज फिल्टर्ड यस इन अ सिंगल मिनट, 1 मिनट में, पर मिनट, है ना। सो 600 ml ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है। लेकिन एक्चुअली कैसे फिल्टर होता है, कितने प्रेशर अंडर फिल्टर होता है, ये हमने आज देखा। वो होता है यस 10 mm ऑफ Hg, है ना, फिल्ट्रेशन प्रेशर अंडर वो ये होता है। लेकिन इन टोटल इसमें फिल्ट्रेशन होता है मतलब एक्चुअली कौन से कंपोनेंट्स ब्लड में रह जाते हैं और कौन से कंपोनेंट यूरिन में उतरते हैं, ये हम कल देखेंगे। आज का हमारा एम इतना ही था कि नेट अप्लाइड प्रेशर जो है वो हम कैलकुलेट करें, है ना। और एक्चुअली फिल्ट्रेशन में क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स नीचे आते हैं, कौन से कंपोनेंट यूरिन में उतरते हैं, कौन से कंपोनेंट्स जो है ब्लड के वो ब्लड में रह जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कल, है ना। आज यही स्टॉप करते हैं।